Good afternoon to all of you. Myself विकास यादव फ्रॉम बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी. आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट न्यू टॉपिक प्रोटीन बाइंडिंग. प्रोटीन बाइंडिंग बेसिकली होता क्या है कि कोई भी दवा अगर आपने इनटेक किया तो वो ब्लड में जाएगी और प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगी. फिर जब वो इफेक्टिव साइट पे जाएगी वहाँ वो प्रोटीन से डिटैच होगी, उसके बाद अपना रिस्पॉन्स देती है. तो थोड़ा सा हम लोग पहले चलेंगे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पे. First of all, what is protein binding of drugs? So many drugs interact with plasma or tissue protein or with other macromolecules such as melanin and DNA to form a drug macromolecule complex. The formation of a drug protein complex is often named as drug protein binding. It is known as ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग. बेसिकली जो आपके तमाम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं उसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन. तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. द रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू डिपेंड ऑन द ब्लड वॉल्यूम ऑफ ऑर्गन्स. The more blood volume the organ has, the faster the amount of drug diffused. Then there is redistribution in some organ. Example, thiopental is lipophilic drug and is diffused into brain more quickly than redistribute to the fat and other tissue. Clear? The concentration of drug at target organ should be measured through the concentration of plasma. So the effect of drug may be estimated at target organ. Clear? Protein binding describes the ability of protein to form bond with other substance and most commonly refer to the bonding of drugs to these molecules in blood plasma, red blood cells, other components of the blood and to tissue membranes. Biological relevance of drug binding. बेसिकली अगर दवा को एक्शन देना है तो उसे बाउंड फॉर्म से किसमें जाना पड़ेगा, अनबाउंड फॉर्म में. वो पहले प्रोटीन से बाइंड है फिर से डिटैच होना पड़ेगा. तो बाउंड फॉर्म और अनबाउंड फॉर्म के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. द बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन इज ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ ड्रग डिस्पोजिशन. Binding has a very important effect on drug dynamics since only the free drug interact with receptors. The protein commonly involved in binding with drug are known as albumin. जो मेन प्रोटीन होती है जो ड्रग से बाइंड करती है, that is albumin. Albumin is a major carrier of drugs. Then lipoproteins and certain other glycoproteins. Acidic and neutral compounds will tend to bond with albumin, which is basic, which basic substance will primarily bind to acidic AGP molecule. Basically जो albumin प्रोटीन है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक. तो उससे कौन आके जुड़ेगा, acidic and neutral compounds. Acidic and neutral compounds are bond with albumin basic protein, while basic substance are primarily bind to the acidic AGP molecule. Clear? The bound drug is kept in the blood stream while the unbound component may be metabolized or excreted, making it the active part. So, if a drug is 95% bound to binding protein and 5% is free, that means that 5% is active in the system and causing pharmacological effect. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 100% दवा आपका प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड, आपने दवा लिया
और वो सारी की सारी दवा प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर लिया, तो क्या वो बायोलॉजिकल रिस्पांस देगा? नहीं देगा। क्या वो कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस देगा? नहीं देगा। दवा का, मेडिसिन का वह पोर्शन जो अनबाउंड फॉर्म में आ गया, वही आपका रिस्पांस देगा। सो इफ ए ड्रग is 95% bound to binding protein and 5% is free, that means that 5% is active in the system and causing pharmacological effect. Clear? Drug protein binding may be reversible or an irreversible process. Irreversible drug protein binding is usually a result of chemical activation of the drug, which then attach strongly to the protein or macromolecule by covalent chemical bonding. Irreversibly, drug binding accounts for certain type of drug toxicity that may occur over a long time period. Clear? For example, the hepatotoxicity of high dose of acetaminophen is due to the formation of reactive metabolite intermediate that interact with liver protein. तो ये हो गया आपका प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में। अब यहीं से फिर हम आगे चलते हैं सीधे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ड्रग इंट्रैक्शन। कौन सा हमारा टॉपिक है? ड्रग इंट्रैक्शन। तो ड्रग इंट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना हो किसको? फार्माकोकाइनेटिक। तो व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक? फार्माकोकाइनेटिक is the study of what the body does to drug. Pharmacokinetic is the study of what the body does to drug. It is a science of kinetics of ADME. It is a science of kinetics of ADME. It is also defined as movement of drug in the body. Movement of drug in the body. Next, elimination occur by two processes, metabolism and excretion. Elimination occur by two processes. First one is metabolism and second one is excretion. फिर हम आते हैं ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब क्या? When the pharmacological activity of a drug is altered by the use of another drug or by the presence of some other substance, it is known as drug interaction. कहने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आपने कोई एक दवा किसी पेशेंट को दिया, अब उस दवा की इफिकेसी में कुछ चेंज हो जाना। क्यों? इसलिए कि आपने कोई और दवा लिया है या किसी और फैक्टर की वजह से अगर उस दवा की इफिकेसी में चेंज होता है, उसके फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस में चेंज होता है, दिस इज नोन एज ड्रग इंट्रैक्शन। इट मींस व्हेन द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए ड्रग इज ऑल्टर्ड by the use of another drug or by the presence of some other substance, it is known as drug interaction. The drug whose activity is affected by such an interaction is called as the object drug. जिसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हुई, कम या ज़्यादा हुई,
उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ड्रग। द एजेंट विच precipitates such an interaction is referred to as precipitant, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स हो रहा है, and the drug is known as precipitant. फिर ड्रग इंट्रैक्शन इंक्लूड, अब ड्रग इंट्रैक्शन को डिवाइड किया गया तमाम कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, सेकेंड वन इज फूड ड्रग इंट्रैक्शन, थर्ड वन इज केमिकल ड्रग इंट्रैक्शन, फोर्थ वन इज ड्रग लेबोरेटरी टेस्ट इंट्रैक्शन, फिफ्थ वन इज ड्रग डिजीज इंट्रैक्शन। फर्स्ट वन इज ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, सेकेंड वन इज फूड ड्रग इंट्रैक्शन, third one is chemical drug interaction, fourth one is drug laboratory test interaction, fifth one is drug disease interaction। तो ये 5 टाइप हैं आपके ड्रग इंट्रैक्शन के। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ड्रग इंट्रैक्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ड्रग इंट्रैक्शन पे अपना इफेक्ट डालते हैं। उसमें फर्स्ट वन आपका आता है मल्टीपल ड्रग थेरेपी। अगर किसी पेशेंट की कई ड्रग थेरेपी चल रही हो तो ये चीज़ें होने की चांसेस रहती हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीपल ड्रग थेरेपी, सेकेंड वन इज मल्टीपल प्रिस्क्राइबर्स, मल्टीपल प्रिस्क्राइबर्स, थर्ड वन इज मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। नेक्स्ट आपका मल्टीपल डिजीज या मल्टीपल इलनेस, फिफ्थ वन इज पुअर पेशेंट कंप्लायंस, पुअर पेशेंट कंप्लायंस। नेक्स्ट एडवांसिंग एज ऑफ पेशेंट, एडवांसिंग एज ऑफ पेशेंट, एंड लास्ट वन इज drug related factor, drug related factor। These are the factors which contributing to drug interaction. First one is multiple drug therapy, second one is multiple prescriber, third one is multiple pharmacological effect of drug, fourth one is multiple disease, fifth one is poor patient compliance, next advancing age of patient, and last one is drug related factors। फिर आपका जो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में, प्रोटीन बाइंडिंग, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग ये कैसा होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रोटीन, ऐसी कौन कौन सी प्रोटीन आपकी ड्रग बाइंड करती है, एल्ब्यूमिन से बाइंड करेगी और लाइपोप्रोटीन से बाइंड करेगी, इम्यूनोग्लोबुलिन से बाइंड करेंगे और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करेंगे। Effect of protein binding interaction, effect of protein binding interaction, it is defined as the hypothetical volume of body fluid into which a drug is dissolved or distributed. It is called as apparent volume because all parts of the body equilibrated with the drug do not have equal concentration. फिर आपका आता है सिनर्जिस्टिक
इफेक्ट ऑफ ड्रग, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। फिर आपका नया टॉपिक आता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग, इसमें क्या आ जाएगा? कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग कहने का मतलब क्या कि आपने दो या दो से ज़्यादा दवाएं लिया और उसकी वजह से रिस्पॉन्स में क्या ऑल्टरनेशन आ रहा है, दैट इज नोन एज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसमें आपका क्या आ जाएगा? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। तो सबसे पहले अगेन हम उसी चीज चलते हैं। व्हाट इज ड्रग? एनी एजेंट which is used for diagnosis, prevention and treatment are called as drug। कोई भी एजेंट जो कि डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं? ड्रग। फिर आपका आता है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक का मतलब क्या? व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी। जो आपकी ड्रग है वो आपकी बॉडी के साथ क्या कर रही है, व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी is known as pharmacodynamic, and pharmacokinetic is what does body to the drug is known as pharmacokinetic। pharmacokinetic में आप पढ़ते हैं किसके बारे में? एडीएम। फिर आपका आता है सिनर्जिस्ट, सिनर्जिज्म। ये क्या है? सिन, SYN। सिन का मतलब क्या? टुगेदर। एर्गॉन, एर्गॉन का मतलब क्या? वर्क। सिनर्जिज्म का मतलब क्या हुआ? वर्किंग टुगेदर फॉर एक्शन। वर्किंग टुगेदर फॉर एक्शन, इसे हम क्या कहेंगे? सिनर्जिज्म। इसमें पहला क्या है? एडिटिव रिस्पॉन्स, एडिटिव। सेकेंड वन इज, तो एडिटिव में क्या आपका आएगा? इफेक्ट ऑफ टू ड्रग आर इन द सेम डायरेक्शन आर सिंपली एड अप। मीन्स इफेक्ट ऑफ ड्रग A प्लस B is equal to effect of drug A plus effect of drug B। Side effect may be different. Side effect may be different. Do not add up. Side effect may be different. Do not add up। एग्जाम्पल के तौर पे क्या? एस्प्रिन और पैरासीटामॉल। एस्प्रिन एंड पैरासीटामॉल। एस्प्रिन आपको क्या है? एज ए एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एक्शन। तो ये आपका क्या है? एडिटिव ड्रग रिस्पॉन्स। एडिटिव ड्रग रिस्पॉन्स which comes under the category of synergism, combined effect of drug। दूसरा आपका आता है सुप्रा एडिटिव, सुपर एडिटिव। इसे हम और क्या कहते हैं? पोटेंशिएशन। क्या कहते हैं? पोटेंशिएशन। द इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल इफेक्ट। द इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल इफेक्ट। इसमें क्या आपका आएगा? इसमें आपका आएगा फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट ऑफ ड्रग A प्लस B इज ग्रेटर देन इफेक्ट ऑफ ड्रग A प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग B। फॉर एग्जाम्पल लेवोडोपा प्लस कार्बिडोपा किसके लिए यूज किए जाते हैं? इनहिबिशन ऑफ पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म। इनहिबिशन ऑफ पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म। तो ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल किसके हैं? एडिशन एंड सुपर एडिशन या पोटेंशिएशन are the example of synergism type of combined effect of drug। क्लियर? अब एंटागोनिस्ट का क्या मतलब हुआ? एंटागोनिज्म में क्या होता है? इसी का जस्ट अपोजिट, मतलब एक दूसरे के एक्शन को कहीं ना कहीं रोकता है। एक जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे के एक्शन को रोक देता है। क्लियर?
फिर आपका आता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, इसमें आप देखेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म। Drug metabolism is the term used to describe the biotransformation of pharmaceutical substance in the body so that they can be eliminated more easily. The majority of metabolic processes that involve drug occur in liver as the enzyme that facilitate the reaction are concentrated there. इसका कहने का क्या मतलब, या यूं कह सकते हैं कि ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप ऑफ रिएक्शंस जो कहाँ चल रही हैं, लिवर के अंदर। जैसे आपने कोई दवा लिया तो दवा ने अपना काम किया और दवा को काम करने के बाद फिर उसको इलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इलिमिनेट नहीं होगा तो वो एक तरीके से घातक है आपके लिए। तो हम ड्रग मेटाबॉलिज्म में यही स्टडी करते हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, जो आपने दवा लिया उसको किसी और उसको यूज़ करने के बाद किसी और फॉर्म में चेंज कर लिया गया ताकि वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो सके। जनरली हम ये देखते हैं कि जो भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, लिवर में। तो इसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोफोबिसिटी is an important chemical characteristics of most drug molecule because the probability of both good oral absorption and interaction with molecular target tend to increase as hydrophobicity increase. तो मोस्ट ड्रग, अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरीके से ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड होती हैं इन द बॉडी। मोस्ट ड्रग्स must pass through the liver, which is the primary site for drug metabolism. Once in the liver, enzyme convert prodrug to active metabolites or convert active drug into inactive drugs. देखिए यहीं से कॉन्सेप्ट आता है किसका, प्रोड्रग का। भाई आपने सपोज दैट कोई आपने मेडिसिन लिया और आप चाह रहे हैं तो आपकी दवा शुरुआती स्टेज में कैसी है, इनएक्टिव फॉर्म में है, फिर वो लिवर में गई, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तब उसके बाद उसने अपना एक्शन दिया। तो ऐसी ड्रग को हम क्या कहेंगे, प्रो ड्रग। मीन्स इनएक्टिव ड्रग का एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट होना इज आल्सो ए बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। लिवर प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर मेटाबोलाइजिंग ड्रग via a specific group of cytochrome P450 एंजाइम। जो हमारा लिवर होता है, लिवर में कुछ खास तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं, ग्रुप्स ऑफ एंजाइम, जिन्हें हम कहते हैं साइटोक्रोम P450, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अब वाई इज ड्रग मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट? द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग कैन हैव इंपॉर्टेंट because after its therapeutic effect, drug should be eliminated via renal or hepatic या biliary pathway. Otherwise, it leads to toxicity. Then एक क्वेश्चन ये उठता है कि what are the 4 stages of drug metabolization?
Drug undergo 4 stages within the body: absorption, distribution, metabolism and excretion. फिर आपका आता है how liver disease affect drug metabolism. The capacity of liver to metabolize drug depend on hepatic blood flow and liver enzymatic activity, both of which can be affected by liver disease. In addition, liver failure can influence the binding of drug to plasma protein. अगर मान लो किसी के लिवर में कोई प्रॉब्लम है, लिवर फेलियर की दिक्कत है, तो वहाँ ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसलिए देखा जाता है कि जिन लोगों में लिवर की या किडनी की दिक्कतें होती हैं, वहाँ हम डोज अल्टरनेशन करते हैं, वहाँ हम डोज को ऑल्टर करते हैं, क्योंकि कितनी हमको इफेक्टिव डोज देनी है ताकि मिनिमम साइड इफेक्ट हो सके, उसमें एडजस्टमेंट करना वहाँ बहुत ही कंपल्सरी है। अब बहुत बार ये देखा गया है कि जिन लोगों में लिवर की डिजीज होती है, लिवर डिजीज, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल डाटा, द kinetics of many drugs are altered by liver disease to an extent that require dosage adjustment. The problem is to quantify the required change. इसके अलावा ये देखा गया है कि बहुत सी जैसे आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में जो दवाएं यूज की जाती हैं या इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन जो यूज की जाती हैं, तो अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है तो उस केस में वहां पे डोज एडजस्टमेंट करना बहुत ही कंपल्सरी होता है। अब जब भी हम ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो सिंपल सा ये ड्रग मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब ये हुआ कि दवा ने अपना एक्शन दिया और एक्शन देने के बाद इसे तोड़ दिया गया ताकि ये इजी वे में इलिमिनेट हो सके। तो जब भी आप ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो वहाँ दो चीज़ें आती हैं, एक फेज 1 और एक फेज 2। मीन्स इन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन 2 स्टेप्स, या ये कह सकते हैं कि फेज ऑफ डी बाई बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, हम ड्रग को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं। तो फेज ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन इन्वॉल्व 2 स्टेप, phase 1 and phase 2. Phase 1 is known as modification and phase 2 is known as conjugation. Phase 1 में क्या होता है? Phase 1 reaction also known as non-synthetic reaction in which oxidation, reduction, hydrolysis, cyclization, decyclization ये सब आपके इन्वॉल्व होते हैं। A common phase 1 oxidation involve change of CH bond to COH bond. ठीक है, बेसिकली है क्या, इन फेज 1 a variety of enzyme act to the polar group into their substrate. One of the most common modification is hydroxylation. इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, साइटोक्रोम P450। इट मीन्स फेज 1 मॉडिफिकेशन में आपके कौन कौन से स्टेप हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लिजेशन, डिसाइक्लिजेशन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? These reactions sometimes convert a pharmacological inactive compound या prodrug to a pharmacological active compound. Phase 1 metabolism of drug candidate can be simulated in the laboratory using non-enzyme catalyst. The example, biomimetic reactions. अब इसमें हमने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन में क्या आता है, साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज सिस्टम ये इन्वॉल्व होता है। और क्या इन्वॉल्व होता है, को ऑक्सीडेशन बाई परऑक्सीडेज। और क्या इन्वॉल्व होता है, मोनो एमिन ऑक्सीडेज। और क्या इन्वॉल्व होगा, फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेज सिस्टम और एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड
एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज सिस्टम या मोनोएमीन ऑक्सीडेज सिस्टम। ये सब के सब किस में इन्वॉल्व होते हैं? ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? NADPH साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज रिड्यूस फेरस साइटोक्रोम P450। हाइड्रोलिसिस में क्या इन्वॉल्व होता है? एस्टरेजेस एंड एमिडेजेस एंड इपॉक्साइड हाइड्रोलेजेस। फिर आपका आता है फेज 2। फेज 2 में क्या आपका आता है? कॉन्जुगेशन। फेज 2 में क्या आता है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या आपका आएगा? मिथाइलेशन, सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन, ग्लूकोनाइडेशन, ग्लूटाथियान कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। इसमें क्या है? कॉन्जुगेशन। It means after the complete of phase 1 step, phase 2nd step involved. In phase 2nd step conjugation process occurs. conjugation में मैकेनिज्म किसकी है? मिथाइलेशन की, सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन, ग्लूकोनाइडेशन, ग्लूटाथियान कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? फेज 2nd में। ये सब कहाँ होगा? लिवर में, किडनी में, कुछ लंग्स में भी, स्किन में भी, प्रोस्टेट में भी, इंटेस्टाइन में भी, ये इसके साइट्स हैं। तो ये देखा गया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लिवर सेल्स इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। जितना भी ड्रग मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, अक्सर ये देखा गया है कि वो कहाँ पे होता है? लिवर सेल में मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। Although every biological tissue has some ability to metabolize drug, factor responsible for the liver contributing to drug metabolism include that is a large organ. Clear? Other site of drug metabolism include epithelial cell of GIT, lungs, kidney and skin. तो ये आपका फैक्टर दैट अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालते हैं? Various physiological and pathological factors can also affect drug metabolism. फिजियोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या आपका आएगा? जैसे एज कितनी है, इंडिविजुअल जेनेटिक वेरिएशन क्या है, ठीक है, न्यूट्रिशन कैसा लिया है, इंटेस्टाइनल फ्लोरा कैसा है, सेक्स डिफरेंस कैसा है, ये चीजें आपकी ड्रग मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालती हैं। इन जनरल ये देखा गया है ड्रग इज मेटाबोलाइज मोर स्लोली इन फीटल, नियोनेंट एंड एल्डरी ह्यूमन, एनिमल एंड इन एडल्ट। तो ये आपका आज का इतना टॉपिक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।